MOSFET is an electronic device most widely used in ICs. It has three terminals named as source, drain, and gate. Construction of basic design of MOSFET is quite simple. Just take a block of P-type semiconductor. This block will be your base for MOSFET. We also call it as substrate, and the entire MOSFET we will fabricate on this base. Now, two portions on the same side of this P-type substrate are made highly doped with N-type impurity, as these are shown here in the figure. Source and drain terminals are brought out from these two N regions as shown. Now, the entire surface of the substrate is coated with a layer of silicon dioxide. Silicon dioxide will behave here as insulation. On this layer of silicon dioxide, a thin metallic plate is placed. This metallic plate will act as gate contact to the substrate. The gate terminal is brought out from this metallic plate. Hence, it is seen from the figure that gate contact is insulated from the substrate, but drain and source contacts are directly connected to respective N-type regions. This was the constructional feature of a MOSFET. Now we will come to the operational features of MOSFET. For that, we have to connect on DC voltage source between these two N-type regions. The N-type region connected with positive terminal of the source is called as drain, and the N region connected with negative terminal of the source is called as source. As soon as the drain and source are connected with DC voltage source, there will be two PN junctions formed. One is in between N-type drain and P-type base, and the other is in between P-type base and N-type source. As drain is connected with positive terminal of the source, the drain is in higher voltage than base. Hence, this PN junction is reverse biased. On the other hand, as source is connected with negative terminal of the battery, P-type base will be at higher potential than N-type source. Hence, this PN junction is forward biased. As between drain and source, there will be one reverse biased and one forward biased junction. There will be no significant current flowing from the drain to source, but a tiny current continues to flow due to minority carriers. We can say that virtually there is no continuous path or channel between drain and source. Now let us see what happens if one suitable positive voltage is applied at gate terminal of the device. In that case, due to attraction of positive potential of gate contact plate, negative free electrons, that is minority carriers in P-type base, will be accumulated towards a contact plate and form a channel of negative charge carriers even inside P-type semiconductor. This channel, due to higher concentration of free electrons, will behave as N-type semiconductor, although entire base is doped with P-type or trivalent impurity. It is obvious that the number of free electrons accumulated towards gate contact plate depends on the strength of positive potential given to the gate terminal.
Hence, width of N channel depends on the voltage applied at gate terminal. More the applied voltage, greater the width of the channel, means greater the conductance between drain and source. Here we have seen that there is no direct connection between gate contact and substrate. Instead, these are insulated from each other. But due to electrostatic attraction, the conducting channel between drain and source is formed, and because of that, the channel is also called induced channel, and the device is called induced channel MOSFET. It is also clear that when there is no voltage applied to the gate of the device, there will be no current from drain to source, except negligible amount of saturation current due to minority carriers. But if the gate voltage is gradually increased by keeping fixed drain to source voltage after certain minimum applied gate voltage, drain to source current will start flowing. And this voltage is called threshold voltage. So, below threshold voltage, the device will behave as non-conducting or in off mode. And for gate voltage greater than threshold value, आज हम है एक को कहा जाता है एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट, दूसरे को कहा जाता है डिप्लेशन टाइप मॉसफेट। अब ये दोनों तरह के मॉसफेट ही दो तरीके के होते हैं। दोनों में ही एन चैनल मॉसफेट और पी चैनल मॉसफेट होता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एन चैनल मॉसफेट पे ही कंसंट्रेट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट पे, फिर उसके आगे हम बात करेंगे डिप्लेशन टाइप मॉसफेट पे। Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. तो जो एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट है, एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट, इसका जो बॉडी होता है, ये बॉडी पी टाइप मटेरियल से बना हुआ होता है और इसे कहा जाता है सबस्ट्रेट या बॉडी। अब इस बॉडी पे दो एन वेल्स बना हुआ होता है। ऐसे एन टाइप मटेरियल डिफ्यूज किया जाता है। चूंकि ये एन टाइप मटेरियल है और ये पी टाइप मटेरियल है, ऑब्वियसली यहां पर जो जंक्शन होगा, पी एन जंक्शन, वहां पर बनेगा डिप्लीशन रीजन। अब इस सबस्ट्रेट को देखें, इसके निचले वाले हिस्से में एक मेटल कांटेक्ट बनाया जाता है जहां से निकलता है एक टर्मिनल। ऑब्वियसली इस टर्मिनल को कहा जाता है सबस्ट्रेट टर्मिनल या बॉडी टर्मिनल। उसी तरह का मेटल कॉन्टैक्ट्स यहां एन वेल्स के ऊपर भी रहता है, मतलब इस एन टाइप मटेरियल के साथ सटा हुआ मेटल कॉन्टैक्ट और उसके साथ दो टर्मिनल्स। एक टर्मिनल को कहा जाता है सोर्स टर्मिनल, दूसरे टर्मिनल को कहा जाता है ड्रेन टर्मिनल। अब इन दोनों के बीच यहां पर एक पतला सा लेयर होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। अब इसका काम क्या है, ये तो आपको धीरे धीरे इस वीडियो में पता चलेगा। ये बहुत ही पतला लेयर होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक इंसुलेटर होता है, और अगर कैपेसिटेंस के टॉपिक के हिसाब से कहें तो ये एक डाई इलेक्ट्रिक होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके ठीक ऊपर एक मेटल कांटेक्ट होता है और वहां से निकलता एक और टर्मिनल जिसे कि गेट टर्मिनल कहा जाता है। तो हमें मॉसफेट में 4 टर्मिनल दिख रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर मॉसफेट्स में ये जो सोर्स और ये जो सबस्ट्रेट टर्मिनल है, ये दोनों इंटरनली जुड़ा हुआ होता है। इससे क्या होता है कि ये दोनों टर्मिनल ही एक टर्मिनल बन जाता है। तो मॉसफेट में इस तरह का अगर इंटरनल कंस्ट्रक्शन रहे तो हमें 3 टर्मिनल्स दिखते हैं। अब ये जो 2 टर्मिनल जिन्हें जोड़ा गया है, इन दोनों को किया जाता है ग्राउंड। तो होता यह है कि ये जो है, ये टर्मिनल, दैट मीन ये वाला साइड, और ये वाला टर्मिनल, ये वाला साइड, ये हमेशा 0 वोल्ट में रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह का है कि यहां पर करंट फ्लो नहीं हो सकता है। बेसिकली
जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स होते हैं वहां पर इंटरनली करंट जो फ्लो करता है वो ड्रेन से सोर्स की तरफ फ्लो करता है। लेकिन यहां पर ड्रेन से सोर्स की तरफ करंट फ्लो नहीं कर सकता है क्योंकि यहां पर दो पीएन जंक्शंस है। अगर आप ड्रेन और सोर्स को एक बैटरी के साथ जोड़ दे, ड्रेन को हायर पोटेंशियल में रखें, सोर्स को लोअर पोटेंशियल में रखें, तो करंट का फ्लो होने का टेंडेंसी रहेगा ड्रेन से सोर्स की तरफ। लेकिन यहां पर ये रिवर्स बायस हो जाएगा क्योंकि एन टाइप मटेरियल जो है ये हायर पोटेंशियल में है और पी टाइप मटेरियल जो है लोअर पोटेंशियल में है, तो करंट यहां से फ्लो नहीं कर पाएगा। डिप्लीशन रीजन जो है वो चौड़ा हो जाएगा, बैरियर पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, तो यहां से करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। उसी तरह से अगर आप सोर्स को हायर पोटेंशियल में रखें, ड्रेन को लोअर पोटेंशियल में रखें, तो भी करंट फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि तब यहां पर बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, यहां डिप्लीशन रीजन मोटा हो जाएगा क्योंकि अब ये रिवर्स बायस में आ जाएगा। तो करंट इस तरह से तो फ्लो कर ही नहीं सकता है। करंट को अगर फ्लो करवाना है तो यहां पर हमें चाहिए होगा एक चैनल। उस चैनल को जो क्रिएट किया जाता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे कैसे क्रिएट किया जाता है कि यहां गेट और सोर्स को जोड़ दिया जाता है एक बैटरी के साथ, एक वोल्टेज सोर्स के साथ, जिसे कि VGS कहा जाता है। यहां पर देखिए गेट जो है हायर पोटेंशियल में है और सोर्स जो है लोअर पोटेंशियल में है। साथ ही साथ चूंकि सोर्स ये ग्राउंडेड है तो ये हमेशा 0 वोल्ट में ही रहेगा, लेकिन गेट अब ये पॉजिटिव पोटेंशियल में आ जाएगा, हायर पोटेंशियल में आ जाएगा। अब इसके कारण जो यहां पर चैनल बनता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैसे चैनल बनता है वो हमें देखना है। अब देखिए ये जो बॉडी है ये तो पी टाइप मटेरियल से बना हुआ है। इसका मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के तौर पे यहां पर बहुत सारे होल्स होंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के तौर पे बहुत ही कम कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जैसे ही ये गेट हायर पोटेंशियल में आता है और ये तो 0 वोल्ट में ही है, ये भी 0 वोल्ट में ही है ये वाला साइड, लेकिन ये वाला साइड हायर पोटेंशियल में आ गया, तो इसके कारण होगा क्या? इसके कारण ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये इस तरफ मूव करने लगेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा यहां से ऊपर से नीचे की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पुश्ड होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आके जमा हो जाएगा। अब देखिए ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर है इसका काम आपको समझ में आएगा। इसका पहला काम तो ये है, चूंकि ये इंसुलेटर है तो इसीलिए यहां से ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल से बाहर नहीं निकल पा रहा, मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जमा हो सकता है। ये तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक काम हो गया। एक और इसका फंक्शनिंग भी है। अगर आप एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में सोचिए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसे बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है, तो इससे होगा क्या? इसके दोनों प्लेट्स के इंटरनल फेसेस में यहां पर पॉजिटिव चार्जेस और यहां पर कुछ नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। लेकिन अगर बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जाए तो इससे क्या होता है? इससे इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। अब वोल्टेज सोर्स उतना ही है लेकिन फिर भी और ज्यादा चार्जेस यहां एक्यूमुलेट हो जाता है, इसीलिए तो कैपेसिटेंस बढ़ता है इसका। तो कुछ ऐसा ही काम यहां पर ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो लेयर है वो कुछ ऐसा ही काम करेगा कि ज्यादा से ज्यादा चार्जेस को ये यहां पर एक्यूमुलेट करवाएगा। जैसे इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में ये जो डाई इलेक्ट्रिक है बीच में जिसे इंसर्ट किया गया वो ज्यादा से ज्यादा चार्जेस को यहां पर इस प्लेट में और इस प्लेट में एक्यूमुलेट करवाएगा। तो सेम इफेक्ट यहां पर भी होगा। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज करने का यहां पर जो पतला सा लेयर यूज किया जाता है उसके दो कारण हैं, दोनों आप समझ गए होंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इस जगह पे आके जमा होगा सबसे पहले, तो जब VGS का वैल्यू बहुत कम होगा तो इसके कारण ये जो P टाइप मटेरियल है उसका ये जो एंड है, ये जो पार्ट है, इसमें इसका जो P बिहेवियर है थोड़ा घट जाएगा क्योंकि यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ आ जाएंगे, कुछ ज्यादा ही अमाउंट में आ जाएगा, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो उसका P बिहेवियर थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसा कब हुआ? जब हमने एक VGS अप्लाई किया, जब VGS का वैल्यू बहुत ही कम है। अब जब आप इस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू को या स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, ज्यादा वोल्टेज का बैटरी यहां पर लगाते हैं, तो क्या होगा? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और बड़ा हो जाएगा।
जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर स्ट्रॉन्गर होगा तो उस समय यहां पर जो एटम्स हैं, यहां इस जगह पे जो एटम है उसके आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल के इस होल को भर देगा। तो होगा क्या, ये होल जो है, जो कि यहां पर था, अब होल गायब हो जाएगा यहां से, लेकिन जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां पर एक होल हो जाएगा। उसी तरह से नीचे वाले एटम से भी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन निकल के उस होल को भर देगा। तो ओवरऑल रिजल्ट देखिए क्या होगा, होल जो है वो नीचे की तरफ पुश्ड होगा। यहां का होल भर जाएगा, नीचे से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो नीचे होल बन जाएगा, उसके नीचे से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो होल धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट करते जाएगा। ऐसा कब हुआ, जब हमने VGS का स्ट्रेंथ को और बढ़ा दिया, तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ। अब इस जगह को आप देखें, यहां पर देखें होल्स नहीं है लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये किस तरह के मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, एन टाइप का या पी टाइप का? ऑब्वियसली एन टाइप मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। भले ही बेसिकली फंडामेंटली ये पी टाइप मटेरियल था, लेकिन अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई होने के कारण यहां पर जो है एन टाइप बिहेवियर आ गया इस जगह पे। जब यहां पर एन टाइप बिहेवियर आ गया इस रीजन पे, तो ये जो एन वेल्स है, ये दोनों एन वेल्स यहां पर साथ ही साथ एक चैनल बनाएगा जो कि ये एन टाइप मटेरियल के तरह ही बिहेव करेगा, ये वाला जो चैनल है। तो दो एन वेल्स के बीच बन गया एक चैनल। देखिए चैनल पहले नहीं था। चैनल क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि यहां पर VGS अप्लाई किया गया। अब VGS का बहुत छोटा वैल्यू जब था तब भी ये चैनल नहीं बना था। इस जगह पे P प्रॉपर्टी थोड़ा कम हो गया था, लेकिन N प्रॉपर्टी पूरी तरह से आया नहीं था। N प्रॉपर्टी पूरी तरह से कब आया, जब VGS का स्ट्रेंथ हमने और बढ़ाया। तो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स वहां से बाहर निकल के, वैलेंस शेल से बाहर निकल के वो होल्स को भर दिया, होल नीचे पुश्ड हो गया। तो ये सारे किस्सा हुआ। कब हुआ, जब VGS का वैल्यू हमने काफी बढ़ाया, तो तब जाके यहां पर चैनल बना। VGS के छोटे वैल्यू के कारण चैनल नहीं बनता है। एक सर्टेन वोल्टेज VGS का जब रीच करता है तब यहां पर चैनल क्रिएट होता है। उस सर्टेन वोल्टेज को कहा जाता है थ्रेशहोल्ड वोल्टेज। मतलब हम कह सकते हैं कि VGS का वैल्यू अगर थ्रेशहोल्ड वोल्टेज से कम हो तो यहां पर चैनल नहीं बनता है। VGS का वैल्यू अगर थ्रेशहोल्ड वोल्टेज से ज्यादा हो तो यहां पर चैनल बनता है, और जैसे ही चैनल बनता है तो यहां पर हम सोर्स और ड्रेन को बैटरी के साथ जोड़ के यहां करंट फ्लो करवा सकते हैं। अब यही से आगे आप समझ जाएंगे कि डिप्लीशन टाइप मॉसफेट कैसे काम करता है। जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है वहां पर दो एन वेल्स तो होता ही है और बीच में एक चैनल भी होता है। वो तो यहां पर भी होता है, लेकिन यहां पर एनहांसमेंट टाइप के केस में इसे बनाना पड़ता है वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करते हुए। यहां पर ये शुरू से ही रहता है। जब इसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है तभी दो एन वेल्स के बीच में एक चैनल बना दिया जाता है। शुरू से ही ये चैनल एग्जिस्ट करता है। इसीलिए देखें हमने यहां पर सोर्स टर्मिनल और गेट टर्मिनल को पहले से ही जोड़ दिया है, और यहां पर कोई भी बैटरी प्रोवाइड नहीं किया गया, वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड नहीं किया गया, फिर भी ये जो चैनल है ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो यही बेसिक डिफरेंस है एनहांसमेंट टाइप और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट पे। अब अगर आप यहां पर बैटरी लगाते हैं तो क्या होगा, ये बैटरी यहां पर लगाने से, वोल्टेज सोर्स लगाने से ये हायर पोटेंशियल में आएगा, ये लोअर पोटेंशियल में जाएगा, तो ये जो चैनल है इसका थिकनेस बढ़ जाएगा। यहां पर भी वही होगा, अगर आप VGS को बढ़ाते हैं तो यहां पर चैनल और मोटा हो जाएगा, यहां पर चैनल का थिकनेस बढ़ेगा और जो करंट यहां से फ्लो करेगा उसका अमाउंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको वाइडर, एक चौड़ा चैनल मिलेगा। तो ये तो हम आगे बात करेंगे इस पे डिटेल्स में। तो हमने देखा डिप्लीशन टाइप और एनहांसमेंट टाइप में यही फंडामेंटल डिफरेंस है। डिप्लीशन टाइप में इस चैनल के थ्रू करंट फ्लो करवाने के लिए हमें यहां पर कोई भी वोल्टेज सोर्स देने की जरूरत नहीं है, ये शुरू से ही चैनल एग्जिस्ट करता है। अब क्या करना है, हमें करंट फ्लो करवाना है इंटरनली ड्रेन से सोर्स की तरफ। यहां भी देखिए इस फिगर में इंटरनली ड्रेन से सोर्स की तरफ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सोर्स और ड्रेन को एक वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ देंगे, जिसे कि हम कहते हैं VDS।
अब जैसे ही हम एक वोल्टेज सोर्स के साथ इसे जोड़ देंगे, वैसे ही एक करंट यहां से ऐसे फ्लो करेगा, इस तरह से। इस फिगर में भी देखिए ऐसे करंट एक फ्लो करेगा, जिसे कि कहा जाता है ड्रेन करंट। अब आप देखिए, अगर VDS को हम बढ़ाते हैं तो ड्रेन करंट का क्या होगा? देखिए, VDS को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो ड्रेन करंट है ये बढ़ेगा, क्योंकि VDS यही तो करेगा। VDS का ज्यादा स्ट्रेंथ मतलब ये ज्यादा से ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा। VDS को अगर डबल कर दे तो करंट भी डबल हो जाएगा, हमें ऐसा लग सकता है। लेकिन यहां पर कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीजें होता है, वो ये कि जैसे ही आप VDS को बढ़ाएंगे, वैसे ही आप ये पाएंगे कि इस जगह पे रिवर्स बायसिंग बढ़ जाएगा। यहां भी देखिए, इस जगह पे रिवर्स बायसिंग बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है बैटरी के ये सोर्स, तो ये तो हमेशा 0 वोल्ट में रहेगा, ये भी 0 वोल्ट में रहेगा, क्योंकि दोनों ही एक वायर से जुड़ा हुआ है और दोनों ही ग्राउंडेड है। तो यहां पर जो डिप्लीशन रीजन था उसमें कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये वाला टर्मिनल जो है बैटरी के पॉजिटिव साइड के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये चूंकि हायर पोटेंशियल में है, ये N साइड जो है हायर पोटेंशियल के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो P साइड है ये लोअर पोटेंशियल के साथ जुड़ा हुआ है। जितना आप VDS बढ़ाएंगे, यहां पर रिवर्स बायसिंग उतना बढ़ेगा। जब भी रिवर्स बायसिंग बढ़ता है तो डिप्लीशन रीजन मोटा हो जाता है, और यहां देखिए चैनल जो है वो नैरो हो गया। तो हमें लग सकता है कि VDS बढ़ाने से जितना बढ़ाएंगे करंट उतना बढ़ेगा, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। VDS डायरेक्टली कोशिश तो करेगा करंट को बढ़ाने का, लेकिन इसका एक काउंटर इफेक्ट भी है VDS का, उल्टा काम भी करने वाला इफेक्ट। वो ये कि जैसे ही हम VDS को बढ़ाते हैं, चैनल वो नैरो हो जाता है। जैसे ही चैनल नैरो हो गया, वैसे ही यहां करंट को ये ज्यादा रेजिस्ट करेगा। हमें पता है कि नैरो अगर कोई वायर हो, वायर का ही एग्जांपल अगर ले ले, एक पतला सा वायर हो, एक मोटा सा वायर हो, तो पतला वायर का सेम मटेरियल से ही बना हुआ रहे दोनों, तो पतला वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। कुछ ऐसे ही आप समझ सकते हैं, पतला चैनल है, नैरो चैनल है, तो ये करंट को रेजिस्ट करेगा। उसी तरह से आप VDS को बढ़ाते जाएं, एक समय चैनल जो है बहुत नैरो हो जाएगा। अब दो तरह का जो काउंटर इफेक्ट है उसे आप ध्यान से सोचें। VDS हम बढ़ाते गए, एक तरफ VDS का कोशिश रहेगा करंट बढ़े, करंट और बढ़े, और VDS बढ़ते साथ साथ ये चैनल नैरो होते जाएगा और वो करंट को रेजिस्ट करेगा। तो दो तरह का जो ये काउंटर काइंड ऑफ थिंग्स काम कर रहा है, एक दूसरे के ऑपोजिट। तो एक समय ऐसा आएगा कि करंट जो है ये सैचुरेटेड हो जाएगा और बढ़ नहीं पाएगा। उस समय उस ड्रेन करंट को हम सैचुरेशन करंट कहते हैं या सैचुरेटेड करंट कहते हैं, और उस सिचुएशन को पिंच ऑफ सिचुएशन कहा जाता है। पिंच का मतलब होता है चुटकी। एक चुटकी जैसा सिचुएशन है, जैसे चुटकी में हम 2 उंगलियों को दबा देते हैं, उसी तरह से देखिए ये डिप्लीशन रीजन जो है इस साइड के साथ, इस बाउंड्री के साथ लगभग टच कर गया है, तो एक पिंच जैसा, चुटकी जैसा सिचुएशन है। तो इसीलिए इसे पिंच ऑफ सिचुएशन कहा जाता है। और जैसे कि हमने बात किया, जो करंट जो कि सैचुरेटेड हो गया, इसे सैचुरेशन करंट कहा जाता है। और इस वोल्टेज को, जिस वोल्टेज में सैचुरेशन करंट बन जाता है, करंट सैचुरेटेड हो जाता है, उस वोल्टेज को कहा जाता है सैचुरेशन वोल्टेज। इसे हम VDS सैचुरेशन भी कहते हैं। तो पिंच ऑफ सिचुएशन में करंट सैचुरेटेड हो जाता है, और जिस VDS के कारण ये पिंच ऑफ सिचुएशन राइज करता है, उसे कहा जाता है सैचुरेशन वोल्टेज। अब आप VDS का वैल्यू कितना भी बढ़ा ले, कितना भी ज्यादा कर ले, पिंच ऑफ सिचुएशन आने के बाद करंट जो है वो और नहीं बढ़ता है, वो वहां पर कांस्टेंट हो जाता है। अब एक छोटा सा सवाल, मान ले कि ये सिचुएशन है, यहां पर VDS जो है ये सैचुरेशन वोल्टेज है, मतलब करंट जो है सैचुरेटेड हो गया। अब VDS को बढ़ाने से करंट बढ़ नहीं सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि करंट और बढ़े, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं? आप कुछ देर वीडियो को पॉज करें और सोचें।
आई होप कि आपको जवाब मिल गया होगा। यहां पर हमें करना यह होगा कि VGS का वैल्यू हमें बढ़ा देना होगा। इस केस में हम यहां पर एक वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड कर देंगे, अगर है तो उसका स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। उससे होगा क्या, उससे ये जो है ये चैनल जो है चैनल चौड़ा हो जाएगा, और चैनल चौड़ा होते साथ यहां जो पिंच ऑफ सिचुएशन है वहां पर जो चैनल है जो बहुत नैरो हो चुका था वो अब काफी चौड़ा हो जाएगा। तो फिर आप इस वोल्टेज को बढ़ा के करंट को बढ़ा सकते हैं। फिर वोल्टेज को आप कुछ देर बढ़ाए तो करंट बढ़ते जाएगा, एक समय फिर सैचुरेशन सिचुएशन आ जाएगा, पिंच ऑफ सिचुएशन आ जाएगा। फिर आप इस VGS का वैल्यू बढ़ा दें तो चैनल फिर से थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। फिर आप इस VDS का वैल्यू बढ़ा दें तो करंट फिर थोड़ा बढ़ जाएगा। ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकता है कि ये जो VGS है इसका क्या रोल होता है सैचुरेशन करंट में। इस तरह के सिचुएशन में ID को बढ़ाने में VGS का रोल क्या है। तो आई होप कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप चाहते हैं तो मॉसफेट में आगे और भी के टॉपिक्स में वीडियोस बन सकते हैं। इसके लिए आपको कमेंट करके मुझे बताना होगा कि मॉसफेट से रिलेटेड कैसा टॉपिक्स आप चाहते हैं। अब जाते जाते मैं आपको मॉसफेट के बारे में जानकारी दूंगा। मॉसफेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। जो मॉसफेट का पहले तो फुल फॉर्म क्या है, तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी मॉसफेट। ये हालांकि ये ट्रांजिस्टर का ही एक प्रकार है जो स्विचिंग और एम्पलीफाइंग का काम करता है, बेसिकली स्विचिंग का काम करता है। मॉसफेट एक ऐसा कंपोनेंट है जो आज की तारीख में मदरबोर्ड्स ले लो या लैपटॉप ले लो, हर जगह पे इसका इस्तेमाल होता ही है। और ये इतना अहम पार्ट बन गया है कि आज की तारीख में कि इसके सिवा बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे। मान लो कि मेरा मदरबोर्ड ही चालू नहीं होगा, क्योंकि मेन पावर सप्लाई करने का ही मॉसफेट काम करता है, बेसिकली स्विचिंग करने का काम करता है। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे स्विचिंग वगैरह करता है, क्या काम करता है। पहले तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मदरबोर्ड्स, आज के जो अपने कंप्यूटर्स के मदरबोर्ड्स आते हैं, आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन में जो मार्किंग किया हुआ है ये पूरे मॉसफेट्स है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये भी मॉसफेट है, ये भी है। ये जनरली ये CPU को पावर सप्लाई करने का काम करता है, वैसे ही रैम के पावर सप्लाई के लिए है और स्लॉट्स के पावर सप्लाई के लिए। तो ये जो सब मदरबोर्ड्स में लगे हुए ये सब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ही है, मॉसफेट ही है। इसके जो दूसरे प्रकार भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये जो देख सकते हैं, अब ये 4 पोर्ट है और बीच में भी यहाँ पे पिन है। इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। ये भी मॉसफेट का ही प्रकार है। और भी देखेंगे तो आप यहाँ पे 4 पिन वाला है, ये भी मॉसफेट का प्रकार है। और ये भी एक सब मॉसफेट के ही प्रकार ही है। तो ये मॉसफेट है क्या, ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है, इसके पिन्स को क्या बोला जाता है, सबसे पहले मैं वहाँ से आपको शुरुआत करूँगा बताने की। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिया है। ये जो बीच का जो पिन है, यानी ऊपर वाला पिन और ये बीच का पिन है, वो एक ही पिन रहता है, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। इसको हम लोग ड्रेन बोलते हैं। पहले पिन को बोलते हैं गेट और लास्ट वाले पिन को बोलते हैं सोर्स। गेट, ड्रेन एंड सोर्स, ऐसे 3 पिन का पूरा कॉम्बिनेशन रहता है। अगर ये टाइप का रहेगा तो भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं पीछे से ये जुड़ा हुआ है पूरा बीच वाले पिन को, यानी ये बीच का पिन जो रहता है वो ऊपर वाले पिन से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए कटा हुआ है। यहाँ पे ये ड्रेन है, ये गेट है और ये सोर्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है। और एक है, ये भी एक प्रकार है जो आईसी के रूप में दिखाया जाता है। आमतौर पर लैपटॉप्स के बोर्ड्स में यही आपको इस्तेमाल होता है। इसमें आप देखिएगा तो यहाँ पे समझो, मान लो कि मेरा पॉइंटर है, यानी यहाँ पे पॉइंट किया हुआ रहता है, वो सबसे फर्स्ट पिन बोला जाता है आईसी का। तो इधर से 1, 2 या 3, ये 3 पिन जो है वो सोर्स की पिन है। आखिरी जो पिन है वो गेट की पिन है, ये वाली। और बाकी की जो सामने वाली जो 4 पिन है वो है डी, यानी ड्रेन की पिन है। ये गेट है, ये ड्रेन है और ये सोर्स है। ये 3 पिन जो है सोर्स है, गेट है और ये ड्रेन है। उसी प्रकार से जो मैंने मदरबोर्ड में दिखाया आपको आगे के, उसमें आप देख सकते हैं बीच का, देखो ये कॉम्बिनेशन, ये सब जुड़ा हुआ है आपस में। ये पूरा ड्रेन है, ये एक गेट है और ये 3 सोर्स है। सेम जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, ये पूरा गेट ड्रेन है, ये एक गेट है और ये 3 सोर्स है। सिंपल। सो इस तरह से पहचान सकता हूँ कि ये मॉसफेट आईसी है। सो मॉसफेट आईसी के अगर प्रकार आप देखने जाओगे तो इतने सारे स्वरूप आपको देखने मिले, इतने सारे रूप में आपको देखने मिलेगा। ये सब मॉसफेट आईसी के ही रूप है। चलिए देखते हैं इसमें कितने प्रकार है। मॉसफेट का भले कोई भी रूप रहे,
उसके अंदर दो प्रकार अलग से रहता है, मतलब दो प्रकार में आता है मॉसफेट। उसको बोलते हैं पी चैनल और एन चैनल मॉसफेट। पी चैनल या पी कैनल्स बोल सकते हैं या चैनल बोल सकते हैं, कोई भी आप प्रकार बोलो, पी और एक एन, ऐसा दो प्रकार इस्तेमाल होता है। अभी पी और एन क्या है, पी चैनल और एन चैनल। तो पी चैनल की बात करेंगे तो ये ड्रेन है, ये गेट है और सोर्स है। ये अंदर की तरफ अगर मॉसफेट के अंदर एक डायोड लगा हुआ रहता है, डायोड का अगर एन चैनल वाला हिस्सा, ये एन वाला हिस्सा, सॉरी ये एन वाला हिस्सा है और ये पी वाला हिस्सा है। डायोड का अगर आप डायग्राम में देखोगे तो ये पी साइड बोला जाता है और ये एन साइड बोला जाता है। तो पी साइड जो ड्रेन के साथ में अगर रहेगा उसको पी चैनल मॉसफेट बोला जाएगा, और एन साइड अगर ड्रेन के पास है तो उसको एन चैनल मॉसफेट किया जाएगा। तो ये हिसाब से आपको आसान पड़ेगा समझने में। ये पी चैनल है क्योंकि पी साइड वाला हिस्सा ड्रेन के पास है, और ये एन चैनल मॉसफेट है क्योंकि एन वाला हिस्सा ड्रेन के पास है। तो इस तरह से आप जान सकते हो कि पी चैनल मॉसफेट है कि एन चैनल मॉसफेट है। इसको चेकिंग करने का तरीका रहता है, मान लो कि मेरा मल्टीमीटर है और मैंने एक प्रोक, यानी मेरे पास रेड प्रोक और ब्लैक प्रोक रहता है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। मान लो कि एन वाला जो हिस्सा मैंने ड्रेन के पास लगाया और ये पी वाला हिस्सा यहाँ पे लगाया और मेरे को कंटिन्यूटी आ रहा है, यानी कि ये वाला हो गया जो एन वाला हिस्सा ड्रेन के पास। सो ये मेरा एन चैनल मॉसफेट हो गया और ये मेरा पी चैनल मॉसफेट है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, पिछले के डायग्राम में, सो दैट आपको आइडिया मिल सके। सो अभी ये इसके अंदर क्या रहता है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है मॉसफेट के अंदर जिसके ज़रिए काम करता है, ये कैसे काम करता है ये। सो अगर मैं डायग्राम के ज़रिए आपको बताने की कोशिश करूँ तो ये मैंने मॉसफेट ड्रॉ किया है। यहाँ पे ऊपर ये पूरा ड्रेन है, ये दोनों पिंस, ये गेट है और ये सोर्स है, जी गेट, एस सोर्स और डी ड्रेन। सो इसके अंदर कैसा होता है, ड्रेन का कनेक्शन सोर्स के साथ में अटैच किया रहता है, लेकिन बीच में एक डायोड लगा हुआ रहता है। और डायोड का यहाँ पे मैंने एन चैनल मॉसफेट दिखाया गया है, तो एन वाला हिस्सा डी के पास है, यानी एन चैनल मॉसफेट है, और ये पी वाला हिस्सा सोर्स के साथ अटैच्ड है। ओके, सो ये अभी ऑफ कंडीशन है। ऑफ कंडीशन का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ से समझो सप्लाई देता हूँ तो ऑन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा डायोड जो है वो रुकवा लेगा करंट को, इस वजह से। और यहाँ पे दो जंपर वायर दिया है, ये जंपर वायर क्या काम करता है, गेट को जोड़ने का काम कर रहा है। अभी गेट देख रहे आप दूर है, जैसे ही वो नज़दीक आ जाएगा, वो नज़दीक कैसे आता है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, उसको ऑन कंडीशन कहा जाएगा। यानी मेरा जो सप्लाई आएगा वो डायोड को बाईपास करते हुए गेट में से सप्लाई आगे भेज देगा। सो ये ऑन कंडीशन बोला जाएगा। चलिए इसको थोड़ा प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के ज़रिए प्रैक्टिकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो जैसे ही मैंने मेरे 12 वोल्ट का सप्लाई दिया, ये देख सकते हैं रेड कलर का वायर यहाँ पे रुक गया, मेरा बल्ब चालू नहीं हो रहा है। मैंने सोर्स के साथ में बल्ब को अटैच करके रखा है, मेरा बल्ब चालू नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मेरा डायोड ने उसको रुकवा दिया। और ये क्यों रुकवा दिया? क्योंकि गेट को मैंने समझो 5 वोल्ट अलग से दिया है। तो जैसे समझो कंप्यूटर के द्वारा मैंने एनालॉग सिग्नल कुछ दिए, तो ये 1 है और ये 0 कंडीशन है, 1 और 0 यानी ऑन और ऑफ ऐसा बोला जाता है। जैसे ही ऑफ का सिग्नल आएगा उसको, तो ये जो गेट है उससे दूर आएगा, जंपर से दूर आ जाएगा, मेरा बाईपास रुक जाएगा, यानी मेरा बल्ब चालू नहीं होगा। और जैसे ही गेट के पास सप्लाई ऑन का आया तो उसने करंट, यानी ये जो मेरा प्रोक है गेट, वो जुड़ गया जंपर के साथ में। सो दैट मेरा करंट जो है यहाँ से आते हुए रेड कलर में आप देख सकते हैं, डायोड को बाईपास करते हुए मेरा बल्ब चालू कर दिया। सो ये पूरा गेट के ऊपर खेल रहता है। मान लो कि 1 सेकंड में मेरा 1000 बार जा रहा है, तो ये 1000 बार बल्ब को बंद चालू करेगा। सो यही काम रहता है, एक स्विचिंग का काम करने का काम करता है मॉसफेट। देख सकते हैं आप डायग्राम में एक दिखाया, जैसे मैंने गेट को सप्लाई दिया बल्ब चालू हो जाता है, सप्लाई निकाल देता हूँ बल्ब बंद हो जाता है। ओके, सो ये एक मैंने डायग्राम के ज़रिए आपको कोशिश की बताने की। सो चलिए क्वेश्चन टाइम, आप मुझे कमेंट में बताइए। हेलो, कार्टून और मॉसफेट में क्या फ़र्क है? तो दोस्तों ट्रांजिस्टर और मॉसफेट में काफ़ी फ़र्क है। देखिए मेनली क्या फ़र्क होता है ट्रांजिस्टर और मॉसफेट में। ट्रांजिस्टर जो है वो कम करंट के लिए हम यूज़ करते हैं,
यानी जहाँ पर हमें कम करंट की आवश्यकता होती है, यानी हमें छोटे मोटे वर्क के लिए हमें कम करंट की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर हमें हैवी करंट की ज़रूरत पड़ती है या हैवी वोल्टेज की, तो वहाँ पर हम ट्रांजिस्टर का यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम ट्रांजिस्टर को लगाएंगे तो ट्रांजिस्टर एकदम से ख़राब हो जाएगा, तो उस जगह के यूज़ के लिए हम मॉसफेट यूज़ करते हैं। और दोस्तों ट्रांजिस्टर और मॉसफेट दोनों ट्रांजिस्टर ही है, वो बस बाइपोलर ट्रांजिस्टर है और ये हैवी यूज़ के लिए है, ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। तो दोस्तों अब इसकी पिन के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रांजिस्टर की तरह मॉसफेट में भी 3 पिन होती है, जैसे आप देख पा रहे हैं। पहली पिन इसकी स्विच की तरह काम करती है, और दूसरी पिन इसकी इनपुट होती है जहाँ से आप इसमें सप्लाई देते हैं, और तीसरी पिन इसकी आउटपुट होती है। तो दोस्तों इस मॉसफेट का नंबर है Z44N, यहाँ पर ये मॉसफेट ही है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी पिन यहाँ पर तो मैंने सिर्फ ये बताया कि पिन कौन सी क्या काम करती है। जैसे पहली पिन स्विच का काम करती है, दूसरी पिन इसकी इनपुट है और तीसरी पिन इसकी आउटपुट है। अब मैं बताऊंगा कि जैसे ट्रांजिस्टर में पहली पिन होती है एमीटर, दूसरी पिन होती है कलेक्टर और तीसरी पिन होती है बेस। दोस्तों मॉसफेट में इन पिन का नाम अलग है। तो दोस्तों इन पिन का नाम मॉसफेट में क्या है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं, ये मेरे पास मॉसफेट है, और जैसे आप देख पा रहे हैं 1 2 3 इसमें भी 3 पिन है। तो दोस्तों पहली जो पिन होगी, इसकी पिन जो स्विच की तरह काम करती है, उस पिन को हम गेट कहते हैं, और जो दूसरी पिन है बीच वाली पिन, इस पिन को हम ड्रेन कहते हैं, और तीसरी पिन जो है इस पिन को हम सोर्स कहते हैं। तो दोस्तों हम ड्रेन पे तो इनपुट देते हैं, यानी बैटरी, मान लीजिए हमारे पास 9 वोल्ट का बैटरी है, तो बैटरी का जो इनपुट है यानी प्लस पॉइंट है, हम यहाँ पर देंगे, प्लस वाला रेड वाला वायर हम ड्रेन पर देंगे, और आउटपुट हम सोर्स से ले लेंगे। जैसे कि एक मैं ये बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे डायग्राम। मान लीजिए हमारे पास मॉसफेट है, तो हमने यहाँ पर प्लस पॉइंट दिया और यहाँ हमने एलईडी लगा दिया, और ये एलईडी हो गया, और बैटरी का माइनस पॉइंट हमने डायरेक्ट दे दिया माइनस। तो हम यहाँ पर तो हम प्लस ले रहे हैं, और यहाँ पर हम इसका बैटरी का ही प्लस पॉइंट से यहाँ से जोड़ देंगे हल्का सा। तो ये क्या होगा, जब हम इस पर जोड़ेंगे तभी यहाँ से आउटपुट निकलेगा इससे, और तभी सर्किट पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों सेम ट्रांजिस्टर की तरह ही काम करता है, इवन ये ट्रांजिस्टर ही है। तो जैसे इसकी पहली पिन मैंने बताई गेट हो गया, और दूसरी पिन हो गया इसकी ड्रेन, और तीसरी पिन हो गया इसकी सोर्स। दूसरी पिन पर हम इनपुट देंगे यानी बैटरी का वायर लगाएंगे, और तीसरी पिन से हम आउटपुट ले लेंगे, और पहली जो पिन है वो स्विच की तरह काम करेगी, यानी जो हमने ड्रेन पर इसका वायर दिया है उसी से हम एक वायर लेकर पहली पिन पर जोड़ देंगे तो ये काम करने लगेगा। अदरवाइज जब तक हम पहली पिन पर इसके इनपुट नहीं देंगे, यानी इससे वायर लेके यहाँ पर नहीं देंगे, तो ये काम नहीं करेगा। तो दोस्तों अब चलिए अब इसका अंदर का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दूँ ये कैसे काम करता है। दोस्तों जैसे आप इस मॉसफेट में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए इसका जो बीच वाला वायर है ये वाला ड्रेन है। तो ड्रेन का जो बीच वाला वायर है, ये पीछे का जो ये पूरा हिस्सा है ये ड्रेन से जुड़ा रहता है, ये पूरा ड्रेन होता है, ये वाला और बीच वाला वायर एक ही होता है। तो दोस्तों चाहे आप वायर यहाँ लगा दीजिए चाहे इस बॉडी पर लगा दीजिए, एक ही काम होगा। और जब आप इसमें इनपुट देते हैं यानी ये जो वर्क करता है, तो तब ये काफ़ी गर्म होता है, तो गर्म इतना हो जाता है कि ये जल जाता है पूरा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं हम क्या करते हैं, हम इसे हीट सिंक से जोड़ते हैं इस तरह से। आपने देखा होगा ट्रांजिस्टर या मॉसफेट ऐसे ही लगे रहते हैं, इनके पास ये एल्युमिनियम की बॉडी लगी रहती है, इसको हीट सिंक कहते हैं। ये क्या काम करती है, जैसे ही ये मॉसफेट गर्म हुआ तो इससे जो गर्मी निकलेगी वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी, और ये क्योंकि एल्युमिनियम बहुत जल्दी ठंडा होता है हवा से, तो इसलिए हम एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं। जैसे इस पे हवा लगेगी इसको ठंडा करता रहेगा, तो हीट सिंक हम इसलिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अब देखिए, अब मैंने इसका अंदर का स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँगा कैसे ये काम करता है। ये इसका अंदर का स्ट्रक्चर है दोस्तों। इसमें मॉसफेट में कुछ नहीं होता, जनरली मॉसफेट में बस एक डायोड होता है। ये डायोड आप देख रहे हैं, ये एक डायोड है। तो दोस्तों इसी डायोड का पूरा फंक्शन है जैसे ट्रांजिस्टर में होता है। हम यहाँ पर गेट देख रहे हैं, आप गेट से ये देखिए एक जम्पर अलग हुआ रहा है, ये जम्पर इस वायर से अलग है, यानी ये डायोड, जैसे यहाँ पर करंट दिया हमने तो एक डायोड आ गया। डायोड से करंट जब तक पास नहीं होगा जब तक हम गेट पर कोई सप्लाई नहीं देंगे।
यहाँ से हमने मान लीजिए करंट दिया तो करंट यहाँ पर रुक गया, आगे नहीं जाएगा जब तक हम गेट पर सप्लाई नहीं देंगे। गेट पर अगर हमने सप्लाई दिया तो ये क्या करेगा, गेट ये यहाँ पर इस वायर को यहाँ पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर चिपका देगा, ऐसे आपस में चिपका देगा। तो जैसे ये वायर यहाँ पर चिपका तो करंट यहाँ पर जो रुका हुआ था वो यहाँ से बाईपास हुआ इस वायर